Hello everyone, welcome to Mindspeak on Hello Global. I am Samik Sen. Joining us today, Mr. Shadib Hashmi, an Indian actor, writer, and director, best known for his portrayal of J.K. Talpare in Amazon Prime's The Family Man. His performance earned him several awards, including Filmfare OTT Award for Best Supporting Actor in a Drama Series. Let me begin by asking you, okay, from working behind the scenes of MTV Roadies to an acclaimed actor today, Mhm. how was the transition I being? actually, I wasn't a part of Roadie's team actually, though I worked in MTV for 4 years as a writer, as their in-house writer. Okay, So I used to take care of all Hindi-based shows, Bollywood-based shows, and humor, Hindi, Bollywood. These were my areas to cover. okay, okay, So I worked there for 4 years, and I did many shows for them. And yeah, it was a big learning experience for me. In fact, the 4 years which I spent in MTV were like one of the most beautiful years of my life. okay. So, So, but when I used to work in MTV, they I used to write a lot of sketch comedies and okay, spoofy stuff. So when I used to narrate the my script to the producer and director, they would tell me, "अरे यार तू कर ले ये वाला रोल अच्छा ये वाला तू अच्छे से बोल रहा है, you only do it." So that's how acting happened, very like by chance, and they kept calling me for acting, for dubbing stuff, and for other things, and I really enjoyed when I used to be in front of the camera. And when uh, I used to, shoot for Bakra, that was my like best day of my, uh, that time. तो वो चीज धीरे धीरे I realized कि acting is what my calling is. of course. Yeah, and but still it took me time to uh, give up my job and pursue acting because I was married, I had a kid. तो वो थोड़ा ट्रांजिशन में टाइम लगा, बट वहां से शुरू हुआ वो जो एमटीवी में छोटे छोटे गैग्स करना, एक्टिंग करना, एमटीवी बकरा, साई साई वर्सेस साई, देयर वाज वन मोर शो, रॉन्डेवू विद सेमी गिरेवाल। तो वो उन सब से धीरे 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 पता नहीं कब वो एक्टिंग की तरफ फिर से वो शुरू हो गया। Okay, so privacy is a myth, just like democracy. This is one of the most popular memes on social media right now. And वो कहते हैं ना मतलब once you become a, you're part of that meme culture, you should know that you've arrived. So how does it या feel being a part of this culture? इट फील्स ग्रेट। इनफैक्ट मेरा पहला मीम जो था दैट वाज फॉर फिल्मिस्तान। जो उसमें एक डायलॉग था, भाई साहब कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। This is used in Yes, all the yes, memes and all the yes, yes. funny videos. So it always feels good to be a part of good to be part of a meme, because really that means, yeah, people are watching you, people are appreciating your work, people Of are course. liking what you're doing. So it is actually like a gratification if True, you're true. part of a meme. I mean, that is the fact today. Yeah, absolutely. Okay, so Family Man gave you immense popularity. It made you a household name. So please tell us, how did this show happen to you? Family Man, yeah. So this character was supposed to be a Bengali called Ghosh, and I went to audition for the part, and I told them I'll need to, work on my Bengali accent first. So I'll come back after a couple of days. So let me prepare for this uh, audition, and then I'll come back. तो वो जो उस वक्त वैभव विशांत जो है वो वहां पर कास्टिंग में इन्वॉल्व थे। Okay, और उन्होंने मुझे बोला कि यार अभी फिलहाल न्यूट्रल कैरेक्टर, मतलब उसमें कर लो एक्सेंट में, फॉरगेट अबाउट बंगाली और व्हाटएवर। तो फिर मैंने एक ऑडिशन दे दिया। सो व्हेन आई केम आउट ऑफ द ऑडिशन, आई फेल्ट रियली नाइस, बिकॉज you know when you have done a good job, and and it is यार very ये natural आज जो also. ऑडिशन था वो बहुत अच्छा हुआ। Of course. या तो तो
so I started, you know, after every good audition, you start waiting for that call. Yeah, यार अभी कॉल आएगा. And you know, बट वो आया नहीं. हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया. But then I think on the 10th day or 11th day, I got a call from Rajan DK's office, and I went to meet DK. और उन्होंने मुझे कहा कि really liked your audition, but you don't look like a Bengali. तो उन्होंने बोला, एंड वी डोंट वांट यू टू पुट ऑन अ फेक एक्सेंट. तो कौन से उसमें मतलब वी कैन फिट यू इन विच रीजन वी कैन फिट यू, और जिसमें यू आर कंफर्टेबल. तो मैंने बोला कि कुछ ऐसे पंजाबी टाइप कुछ कर सकते हैं. बोला, नहीं नहीं, पंजाबी बहुत हो गया है. तो फिर मैंने बोला यूपी में, यूपी का कुछ कर सकता हूँ मैं. तो उन्होंने बोला यूपी का तो तिवारी है ऑलरेडी, श्रीकांत तिवारी. तो मैंने कहा फिर मैं बॉम्बे में, मुंबई में पैदा पला बड़ा हूँ, मराठी भी बोल लेता हूँ, तो महाराष्ट्रन कर सकते हैं. तो वो उन्हें चीज अच्छी लगी, एंड दैट्स हाउ घोष बिकेम जेके. जे के तलपड़े. एंड दैट्स हाउ आई गॉट द पार्ट. So Jayawant Kashinath या. Talpade. So how did you prepare for this film? हाउ डिड आई प्रिपेयर? यार मैं, आई एम एन अनट्रेन्ड एक्टर. I really don't have any method, or the ways to prepare for a Sure, part, so sure. to speak. But I follow my script. My script is my Bible, and I follow my director. We have discussions about the character, and जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो इतनी डिटेल्ड है, इतनी वेल रिसर्च्ड है कि मेरे को और कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी थी. So I just had to, understand what Rajan DK wanted from me. And on the first day itself, we cracked the character. And मैं से prepare, we will frankly speaking, I don't want to, say कि और मैंने इतने दिन वो किया या ये किया और उसके लिए ऐसा कुछ है नहीं. I really didn't prepare much for JK, but maybe it came naturally to me. Uh, So you just mentioned you cracked the character. I'm very keen to know what was the brief by the makers behind the chemistry between you and Shrikant. ब्रीफ क्यों, हम तो फ्रेंड्स हैं, मतलब एकदम जैसे बडीज होते हैं. जब फर्स्ट डे था, आई वाज रियली नर्वस बिकॉज वो तिवारी इज माय बडी, बट मनोज बाजपेयी Manoj नॉट. Bajpayee, of course. और एंड ही इज दी मनोज बाजपेयी, मतलब ही इज अ लेजेंड. True, very एंड आई true. रियली एडमायर्ड हिज वर्क, मतलब चाहे बीट सत्या, शूल, कौन, या अलीगढ़, या कितनी भी जो फिल्म उन्होंने की है, सब कमाल परफॉर्मेंसेस हैं. Very true. तो मैं तो उनका बहुत भयंकर फैन रहा हूँ. उसके बाद में जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, बट ही मेड मी सो कंफर्टेबल. और पहले ही दिन मतलब हमने एक एक केमिस्ट्री डेवलप की, और वो जो दोस्त वाला जो था ना, वो दोस्ती एकदम जम गई हमारी. तो वही ब्रीफ तो यही था कि बस यू गाइस आर लाइक द बेस्ट ऑफ द बडीज. So there was no special effort that you had to make to bring out that chemistry. अगर एफर्ट डालना पड़ता तो फिर आई थिंक वो दिखाई देता Of course. था. तो Okay. वो एफर्ट डालना नहीं पड़ा. Okay. How was the experience of working as a lead in the critically acclaimed movie Filmistan? Filmistan is something which is closest to my heart, because Sure. that film gave me immense appreciation, love, True. critical acclaim, awards, and exposure and recognition in the film industry. So it is very, very special. And चाहे कितनी भी बड़ी फिल्म आ जाए करियर में, फिल्म सीरीज जो भी हो, बट the place which I have for Filmistan in my heart, it can it is irreplaceable. तो बहुत बहुत मजा आया था, because I can't thank Nitin Kakkar, the writer and director of Filmistan, enough for trusting me. क्योंकि पहली बार जो बंदा आपको ट्रस्ट करता है वो बहुत जरूरी होता है. Of course. क्योंकि as an actor, you face rejections when you're starting. When you're starting out, you face rejection on a daily basis. हर तरीके से, मतलब काफी आपको डैमेज भी कर सकता है. लेकिन मैं थोड़ा सा, आई एम अ लिटिल थिक स्किन्ड. तो वो, उसकी तो आदत पड़ गई थी. लेकिन वो पहला आदमी जो आप पे भरोसा दिखाए कि हाँ,
yes, he can pull it off, or he has that thing which you know the subject demands. तो वो एक नए चेहरे पे ट्रस्ट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे लिए वो चीज इस फिल्म की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। नितिन कक्कर का मेरे पे फेथ, मेरे पे कॉन्फिडेंस होना, मेरे से ज्यादा उसको मेरे पे कॉन्फिडेंस था। और एंड आई वाज द ओनली अनट्रेन्ड एक्टर अमंगस्ट ग्रेट एक्टर्स लाइक कुमुद मिश्रा जी, इनामुल हक, गोपाल दत्त। देर ऑल एनएसडीएंस और ट्रेन्ड एक्टर्स हैं, और बहुत ही काफी काम भी किया हुआ है उन्होंने। उनके साथ मुझे, मैंने सिर्फ एक फिल्म की थी उसके पहले, जब तक है जान, और उसके बाद सीधा फिल्मिस्तान में मेन लीड में मैं पहुंच गया। तो वो मेरे लिए, आई वॉज अ लिटिल, इट टुक टाइम फॉर मी टू ओपन अप ऑन द Of सेट्स ऑफ course. फिल्मिस्तान। चाहे आपको वो स्क्रीन पे नहीं लगेगा, बहुत उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। जो है वो 60% मैं अपनी रियल लाइफ में हूँ, बट वो प्ले करने में मुझे बहुत डिफिकल्टीज आई शुरू में। बट with the help of all my co-actors and Nitin Kakkar, everybody really helped me. सबने मुझे हर, मतलब they went out of their way to help me, support me in every way. So Filmistan has been a beautiful journey during the making. Also when we were doing the festival rounds, uh, Okay. इस फिल्म को का फेस्टिवल प्रीमियर बुसान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, which is a Yes. very prestigious international film festival, and the film got special jury mention in the festival, so in the competition. तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, because हम It's a सब big thing. सब नए थे, कोई नहीं, और suddenly we get special jury mention. Then we went to some 18 film festivals, और बहुत everywhere we went, the film was received with immense love. And then the film got national award for best Hindi film. तो Of course. वो हमारे लिए, वो तो बहुत बड़ा क्या Achievement. कहेंगे उसको, अचीवमेंट था। और उसके बाद फिर जब फिल्म रिलीज हुई, तब इंडस्ट्री ने देखा, सभी ने पसंद किया। तो वो मेरे लिए पूरा फिल्मिस्तान, जब से when we started writing, because I've also written the dialogues of फिल्मिस्तान, वो राइटिंग के प्रोसेस से लेके रिलीज तक, पोस्ट रिलीज जब सारे अवार्ड्स हुए नेक्स्ट ईयर, उन सब में आई वाज नॉमिनेटेड, आई वन स्क्रीन। वो पूरा जो टाइम था ना, इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट इयर्स ऑफ माय लाइफ। तो वो कभी मैं भूल नहीं सकता। एंड वो फिल्मिस्तान इज is closest to my heart, and it will always remain so. Okay, so being an untrained actor, please tell us the kind of challenges you have faced. चैलेंजेस, मुझे क्या कहते हैं उसको, ऐसे चैलेंज चैलेंज तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन हाँ, जब कोई मुझसे कोई एक्टर जब शुरू में मुझको बोलते थे कि यार ये, इनफैक्ट कुछ फिल्म के सेट पे मुझे एक बार किसी ने बोला भी था कि अरे ये बराबर से लाइट पकड़ने को नहीं आता है, यू हैव टू कैच द राइट लाइट ऑन योर फेस Okay. प्रॉपरली जब आप आ रहे हो, स्टैंडिंग ऑन द मार्क, ये सारी चीजें। तो मैं उन पे ज्यादा ध्यान देता नहीं था, और आई वुड ऑलवेज मिस द मार्क, आई वुड ऑलवेज यू नो फॉरगेट टू कैच द लाइट ऑन माय फेस। और वो मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि मैं उस ध्यान में नहीं रखूँ ये सब टेक्निकल चीजें। तो वो टेक्निकल चीजें समझने में थोड़ा वक्त लगा, और उनको वापस से भुलाने में फिर से वक्त लगा। तो मेरे ख्याल से अनट्रेन्ड एक्टर होने से मुझे चैलेंजेस से ज्यादा बेनिफिट हुआ है। Benefits. क्योंकि आई हैव लर्नड एवरीथिंग, आई हैव लर्नड ऑन द जॉब। तो मेरे जो को एक्टर्स हैं, मेरे डायरेक्टर्स हैं, दे आर ऑल माई गुरुज। मैंने उनसे ही सब कुछ सीखा है। और जब तक है जान, फिल्मिस्तान, फैमिली मैन, और इन सब में जब मैंने सब इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ में जब काम किया, तो वो जिस तरीके से अपना कैरेक्टर अप्रोच करते हैं, वो जिस तरीके से अपने सीन्स करते हैं, वो जिस तरीके से रिहर्सल्स में कितना देना है, टेक में कितना परफॉर्म कर, वो सारी चीजें मैं जब देखता था, तो अरे यार ये तो मतलब आई नेवर थॉट अबाउट दीज थिंग्स। तो वो मुझे काफी
मैंने सब कुछ जो भी सीखा है ऑन द जॉब सीखा है। और मेरे ख्याल से वो चैलेंजिंग नहीं था, वो बहुत ब्यूटीफुल था मेरे लिए, वो एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ एज एन एक्टर ऑन द ऑफ कोर्स। सेट्स। तो वो बहुत कमाल चीज थी। और मैं चाहता हूँ कि मैं वैसे ही सीखता रहूं अपने को एक्टर्स के साथ, और Sure. दिस लर्निंग नेवर स्टॉप्स। So you have been a part of many big films with like which has won a lot of awards. And here I would like to talk about the Oscar-winning film Slumdog Millionaire. So how Yeah, was the experience of working with the legendary director Danny Boyle? it was amazing, amazing to say the least, because I have immensely enjoyed his films, Danny Boyle sirs. And when I got the call for the audition, it was just a one page scene. It wasn't even a character. It was like anybody with the character which I auditioned for in Slumdog. And when I was auditioning, Danny Boyle himself was giving me cues for the other part. And I improvised one line. He really liked it. Sets, the line which I had improvised, Danny Boyle sir had incorporated that line in the script. Oh wow. So that felt so good that, yeah, I'm doing something right. And we, it was like a day's job, but they had taken 2 days from me, like buffer लेके. So first day I didn't shoot. तो पैकअप के बाद में मुझे डैनी सर मिले और उन्होंने बोला कि शारिब, I'm really sorry, I apologize that we couldn't shoot with you today. It was a very hectic day for us. He didn't need to, do that. मतलब कि अगर वो मुझसे बात भी नहीं करते तो मुझे कुछ ना बुरा लगता। मतलब यहाँ पे तो आप अगर एक एक सीन वाले कैरेक्टर्स है ना, तो आप सिर्फ चीफ एडी के साथ में बात करते हो, डायरेक्टर तक कोई पहुंचता ही नहीं है। बट वो मुझसे माफी मांग रहे हैं कि ये मैंने शूट Very नहीं कर humble. पाया, और ये, या, और एंड ही आस्क्ड मी कि शारिब, डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट? Yes, I did, sir. So we've incorporated your line in the script. You're even part of the script now. Oh तो वो wow. मैं मतलब मैं आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन अवे उनकी हम्बलनेस से। उनको वो जिस तरीके से मतलब मुझसे इतना इतना रिस्पेक्ट वो जो मुझे दे रहे थे, आई वॉज अ नो बडी। बट उस दिन मैंने वो किया था कि यार, चाहे कितनी भी सक्सेस मिल जाए, वो क्या कहते हैं उसको, कभी उड़ना नहीं चाहिए आसमान में। True, जमीन से true, पैर जुड़े रहने चाहिए हमेशा। true. तो यह स्लमडॉग मिलियनेयर मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। जब शूट भी हुआ, हमने जब शूट किया तभी भी मतलब ही हैड सो मेनी encouraging थिंग्स टू से टू मी। तो वो हर कोई नहीं करता। हर डायरेक्टर आके वो नहीं बोलता कि अरे यार तूने कितना अच्छा किया, अगर अच्छा भी किया हाँ ठीक है, ओके मूव ऑन। जो मतलब एक सीन के लिए आते हैं या दो सीन के लिए आते हैं। तो या, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। Okay, so let's talk about Asur season one. You left a very impactful, thing in your role as Lolak Dubey. So how was the experience? Amazing, amazing. Asur has been really, really special in my OTT journey. Asur, in fact, I was uh, contemplating to not do the show, because when I had almost completed Family Man, we had finished the major schedule of the series. I got the offer of Asur. मुझे लगा कि यार दोनों में वो कॉप जोन में है, Hmm. विल इट बी लाइक टू सिमिलर, और कहीं वो टाइपकास्ट वाला तो नहीं होगा, या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत मैं सोच रहा था, आई वाज इन टू माइंड्स वेदर आई शुड डू इट और नॉट। देन आई जो जो पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे वो मैंने फैमिली मैन के इधर रखे, एक साइड में जेके के कैरेक्टर्स रखे, एक साइड में लोलाक दुबे के। फिर मुझे लगा कि यार नहीं यार, और जो कहानी है, कहानी दे दे टू कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स। True, true. और लोलार्क दुबे जो है वो है कॉप, लेकिन वो जेके की तरह स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है।
वो जेके की तरह लेट बैक नहीं है, वो काम एक्चुअली लोलार दुबे इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन असुर। वो केसर के बारे में पता लगाता है, वो बनारस में जाके पूरा जब वो रिसर्च करता है तो उसको सारी चीजें यस, यस। रिवील होती हैं। तो वो, और एंड ही इज अ फैमिली मैन असुर में। उसकी बीवी है जो हुज प्रेग्नेंट, और वो काफी बीवी से बीच बीच में हमेशा बताता रहे, बोलता रहता है कि यस। यार मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मेरे को अभी बीवी वेट कर रही है। तो वो, और जेके जो है वो कम्प्लीटली, वो ही इज अ लोनली गाय, फ्लर्टेशियस तो मुझे लगा कि यार ये, और दुनिया बिल्कुल ही डिफरेंट है तो मुझे लगा कि यार मुझे करना चाहिए। अगर मैं सिर्फ एक कॉप है उस वजह से, अगर मैं ये शो सीरीज अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो बहुत गलत होगा। एंड आई थिंक आई टुक द राइट डिसीजन ऑफ डूइंग दिस सीरीज। और आई रियली थैंक तनवीर बुकवाला जो प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने मतलब मुझे बोला कि, और मैं उनके बोलने पर ही मैंने ये सीरीज की। तो वो बहुत मतलब थैंक यू तनवीर भाई और उसके अलावा जो काम करना शुरू किया, तो बहुत अमेजिंग कमाल का एक्सपीरियंस रहा अरशद सर के साथ काम करना, वरुण सोपी, अमेय वाघ, एंड जो डायरेक्टर थे हमारे हैं उनी सिंह। बाप रे, ही इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन। You beautifully portrayed the role at Asur. I थैंक यू सो Yes, मच। yes, definitely. थैंक यू, आई एम सो ग्लैड यू लाइक इट Of सैम। course. I wanted to know, like, what do you see in a script before you decide to do it? When I get a script, when I read a script, I read it as an audience, Okay, as a reader. If it is engaging me enough, if it is, sure. holding my attention, if it is grabbing me by the balls, and if that script is, engaging enough, what part am I playing in the script? How much my character is contributing in the story? Is it taking it forward, or you know pulling it back? तो ये दो चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी और उसमें मेरा किरदार, द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड देन ऑफ कोर्स एक डायरेक्टर अगर सही नहीं है तो वो अच्छी स्क्रिप्ट की भी बैंड बजा सकता है। Of तो course. डायरेक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड देन द एंटायर टीम, प्रोड्यूसर, द को एक्टर्स, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यस, द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्टर द मेन डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर Okay, so you mentioned about, in our last question, we were talking about being typecast. Okay, this was something like, मी। which is basically projected by the makers or by the audience for an actor itself. So, do you think this is prevalent in today's time also? Because this used to be a very old thing that, getting typecast doing similar kind of roles. Do you think, like, there is a fear today also? Yeah, there is a fear today also. But in fact, now after doing Asur and Family Man, two series as in the cop, this thing, I don't mind getting typecast. My doing Asur, क्योंकि मैं क्यों वो करूं, किसी अच्छी कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है मुझे जिसमें आई एम अगेन गेटिंग टू प्ले, तो व्हाई शुड आई रिजेक्ट इट? बिकॉज सोशल True. मीडिया हैंडल्स, ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, दे टेल मी कि अरे यार हमको आपको कॉप के रोल में देखना है, आप कॉप बड़े मस्त लगते हो, आप असुर और फैमिली मैन जैसा ही कुछ करो जो भी करना है Definitely. तो It is वो true. हाँ, तो मुझे लगता है कि टाइपकास्ट होना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि आपको, एक तो आप एक सिमिलर जोन में हैं, उसमें आप कुछ अलग कर रहे हैं, वो करना अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज होती है। और अगर Definitely. ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर रही है उस चीज में, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग राइट। और अगर आप स्टीरियोटाइप होते हैं, तो जैसे चार्ली चैपलिन जी हैं, उन्होंने कम से कम जितनी भी फिल्में की हैं, ही इज प्लेड द ट्रैम्प इन Of course. मैक्सिमम ऑफ हिज फिल्म्स, True. बारिंग अ फ्यू। और अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने एंग्री यंग मैन के Vijay. इमेज के साथ में विजय को लेके उन्होंने कम से कम 12-15 फिल्में की, एंड देव ऑल बीन ब्लॉकबस्टर्स। और उनका परफॉर्मेंस हर फिल्म में कमाल है, एंड यू वांट टू सी मोर ऑफ विजय और ऑफ दैट एंग्री यंग मैन। तो True. मुझे लगता है कि, और जब जैसे शाहरुख खान साहब हैं,
उन्होंने कितनी सारी रोमांटिक फिल्में की हैं, और वो हर फिल्म में जब वो हाथ भी ऐसे करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि यार ये फिर से ये हाथ क्यों किया। हम तो चाहते हैं कि वो मतलब हाथ वो फैलाएं, कर और भी एक्चुअली वेट फॉर वो दैट। वी वेट फॉर दैट। तो वो मैं तो चाहता हूँ कि मैं टाइप कास्ट हूँ, बट आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच कम्स माय वे। मुझे बहुत सारे कॉप के पार्ट्स आते हैं, लेकिन दे हैव टू बी लाइक वेल रिटन। अगर वो अच्छा लिखा हुआ नहीं है, आई डोंट वांट टू डू अ बैड कॉपी ऑफ जेके। ऑफ कोर्स। इट हैज टू ईदर बी completely different or a better version of जेके या लोलाक, या जो भी मैं आई 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 कैन प्ले 5 पार्ट्स इन 5 डिफरेंट फिल्म्स और सीरीज, बट वो लिखाई उनकी बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है। तो वो मुझे लगता है कि फिर मुझे अगर फिर से कोई कॉप का रोल मिलेगा मैं फिर से करूंगा, बट ऐसा कुछ अच्छा ऑफर ही नहीं आया, या ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं आई जिसको मैं हाँ बोलूं कि यार ये वाला कॉप जो था वो बहुत ही जबरदस्त था। तो एंड थैंकफुली आई द काइंड ऑफ रोल्स आई वाज ऑफर्ड आफ्टर फैमिली मैन, दे वर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। चाहे वो तरला का नलिन दलाल हो, ओके। वो वाज अ सपोर्टिंग हस्बैंड, बिल्कुल डिफरेंट था। और अफवाह में जो मैंने चंदन का कैरेक्टर किया विच हैड नेगेटिव शेड्स, बिल्कुल अलग था। विक्रम वेदा में बबलू भैया वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मैं अलग अलग रोल्स भी कर रहा हूँ एंड आई एम एंजॉइंग देम। और मुझे आई डोंट माइंड प्लेइंग अ कॉप अगेन एंड अगेन, उसका कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज you know the script I'm reading is meaty enough, is strong enough. ट्रू। ओके, सो कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन स्कैम 1992? कैम तो बहुत, इनफैक्ट मुझे आई मेट जय फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर स्कैम, और उन्होंने ही अप्रोच मी टू प्ले बेलारी। और वो ही वॉज अ लिटिल रिलक्टेंट कि मैं ये एक सीन वाला रोल है ये मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने मतलब फिल्मिस्तान की हुई है और दूसरी फिल्में की हुई हैं, तो उनको लग रहा था कि मैं शायद स्कैम को मना कर दूं। बट व्हेन ही नरेटेड मी द होल यू नो सब्जेक्ट, और एक जिस्ट उन्होंने दिया कि यार एक तो हर्षद मेहता के बारे में है, जिनको हम मतलब वी वर ग्रोइंग अप जब ये ग्रोइंग सारी अप। चीजें हो रही थी। तो वो टाइम था, और उसमें जिस जो विसल ब्लोवर है वो वाला पार्ट है, चाहे वो एक सीन का था, लेकिन वो जो जब उन्होंने वो सीन बताया मुझे, मुझे मतलब आई डिडंट फाइंड एनी रीजन टू से नो टू दैट पार्ट। क्योंकि मेरे लिए लेंथ कोई इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब लेंथ इज नॉट ऑफ दैट इम्पोर्टेंस। जो आप कर रहे हो वो बहुत जरूरी है, क्या कर रहे हो किन लोगों के साथ कर रहे हो। हंसल मेहता सर डायरेक्ट कर रहे हैं स्कैम, वो अगर मुझे फ्रेम को पास करने के लिए बोलेंगे तो भी मैं करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने मुझे इतना प्यारा रोल दिया, और बेल्लारी से मुझे बहुत प्यार मिला, शरद बेल्लारी से। और मुझे बहुत बहुत मजा आया हंसल सर के साथ काम करने में, जय के साथ, जय मेहता के साथ काम करने में। एंड हमारा ये सेकंड शो था श्रेया के साथ में, मेरा जो सीन था, हम पहले फैमिली मैन में काम कर चुके थे, फिर बाद में स्कैम के सेट पर मिले। ऑफ तो कोर्स। इट इज ऑलवेज लवली वर्किंग विद श्रेया। हम मतलब वी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और उनके साथ काम करके वो मतलब वो चीज ब्रिलियंट। तो उनके साथ जब भी काम करता हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि हम और ढेर सारा काम साथ में कर पाए। तो स्कैम मेरे लिए बहुत मतलब इट वाज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। Okay, so any आई विश आई particular, हैड अ बिगर पार्ट दो। of course, of course. हाँ, So any particular director you look forward to, like, work with in future? There must be many, I guess. अनुराग कश्यप सर, दिवाकर बैनर्जी सर, देर आर मेनी, बट ये दिवाकर बैनर्जी सर, कानू बहल साहब, शिमित अमीन जी, ये सब मुझे बहुत बहुत पसंद है। राजू ईरानी सर, इनके साथ में अगर काम करने का मौका मिलेगा तो मजा आ जाएगा। Amazing.
Okay, so please tell us about your upcoming projects. अभिषेक चौबे, मैं आई एम डाइंग टू वर्क विद अभिषेक चौबे, आई कांट Definitely. वेट कब वो मुझे कास्ट करें और कब हम साथ में काम करें। मतलब मैंने उनका भी काम देखा है, सब मुझे बहुत पसंद है, इंक्लूडिंग द लास्ट द किलर सूप। Okay, so please tell us about your upcoming projects. My upcoming projects, now this film called शर्मा जी की बेटी, Okay, जो आ रही है 28 जून को प्राइम पर, so that is my immediate next. And in July, I think 12th July को रिलीज हो रही है 36 days. It's a okay, series on Sony Live. It will stream on Sony Live. उसके बाद एक फिल्म है द डिप्लोमैट विद जॉन अब्राहम, वो इट विल बी अ थिएट्रिकल रिलीज, वो उसके बाद। एंड देन देयर आर फ्यू मोर फिल्म्स। एक उल जलूल इश्क एक फिल्म है जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और जिसमें विजय वर्मा है, फातिमा सना शेख है, नसीर साहब हैं और मैं oh हूँ। wow. और बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई है विभुपुरी, जो हमारे डायरेक्टर हैं, मनीष मल्होत्रा साहब प्रोड्यूसर हैं उसके। बहुत प्यारी फिल्म है। तो और कुछ और फिल्में हैं जिनके बारे में आई कांट डाइवल्ज राइट नाउ, बट इसी साल मैंने आई फिनिश्ड थ्री शूटिंग फॉर 3 फिल्म्स, एंड Oh, सीजन 3 फैमिली मैन का चल रहा है। यस, सीजन 3 आएगा I फैमिली was मैन about to का। ask you that. What can we expect from the season 3 of Family Man? व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट क्या बताऊं, जो आप लोगों ने अब तक दोनों सीजन्स में जो धमाल देखा है, तो इट विल ऑल बी देयर इन द थर्ड सीजन एंड मोर। Okay, बहुत बहुत मतलब वी फिनिश्ड वन शेड्यूल एंड आई हैड ग्रेट टाइम अगेन ऑन द सेट्स ऑफ फैमिली मैन, प्लेइंग जेके, working with Manoj sir, Rajan DK, and the entire team of Family Man. I was dying to go back on the sets of Family Man क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और जेके जिस दिन शूट होता है ना फैमिली मैन का, उस दिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड सुपर चिल, तो मुझे बहुत मजा आता है। तो या फाइनली वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर इट, एंड अभी नेक्स्ट शेड्यूल होगा जल्दी। so as an audience, we are also waiting for the season 3 very desperately now. सुपर, थैंक यू सो मच। Okay, मैं my आई last कांट वेट फॉर द थर्ड सीजन टू स्टार्ट स्ट्रीमिंग। okay, my last question to you. Okay, what would be your या word of advice to the aspiring actors? मैं उनको सिर्फ यही बोलूंगा कि बी परसिस्टेंट, हैव पेशेंस, हैव कॉन्फिडेंस, एंड जस्ट लगे रहो। क्योंकि यहाँ पर ना जमे रहना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत हजारों लोगों को देखा है जो मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन कुछ लोग गिव अप कर देते हैं एक पॉइंट पे, कुछ और वो उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि यू हैव टू यू नो थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। So, काफी फाइनेंशियल होते हैं, फैमिली होती है, आप इमोशनली भी काफी चीजें इफेक्ट करती है व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग। तो उन सबको सबको रख के वहां पे टिके रहना व्हेन नथिंग इज हैपनिंग, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट अगर वो आपने अचीव कर लिया, तो आपको आपका एक चांस तो मिलेगा। तो वो पेशेंस, सबर, परसीवरेंस, ये सब बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर आप आ रहे हो एंड द रोड अहेड इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो मैं आई हैव एक्चुअली वांट टू डिस्करेज यू गाइस। क्योंकि क्योंकि अगर आप मेरे बोलने से डिस्करेज हो गए, तो आप वैसे भी यहाँ पर आपका काम होने नहीं वाला था। wow. अगर मेरे बोलने के डिस्करेज करने के बावजूद अगर आप आना चाहते हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम। तो फिर सर पे कफन बांध के आइए, क्योंकि बहुत इफ यू आर रियली 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 पैशनेट अबाउट दिस प्रोफेशन, if you really love acting, only then you pursue it as a career, as a profession. Otherwise बाकी कोई और रीजन से करोगे तो कुछ नहीं होगा। Okay, Sharif ji, thank you so much for taking out this time. Okay, we are very keenly waiting for all your shows. I wish you all थैंक the यू, best for थैंक यू your सो all मच the सैम। future films and shows itself. थैंक Thank you so much. It was थैंक्स अ lovely, लॉट, lovely talking to you. It was lovely lovely talking to you. talking to you too। Same here, same here। Thank you so much.